بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ایک سفر میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ چل رہے تھے تو میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 امور معجزات دیکھے۔ ہمارا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس پہ پانی رکھا جا رہا تھا۔ اونٹ نے جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو وہ بلبلانے لگا اور اپنی گردن ازراہ تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ اس کا مالک حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یہ اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں حضور، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مجھے بیچ دو۔ اس نے دوبارہ عرض کی، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے اور بے شک یہ ایسے گھرانے کی ملکیت ہے کہ جن کا ذریعہ معاش اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب تمہارے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اس اونٹ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے شکایت کی ہے کہ تم اس سے زیادہ کام لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ہم روانہ ہوئے اور ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں محو استراحت ہو گئے۔ اتنے میں ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ سایہ فگن ہوا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، بس اس نے اسے اجازت دی۔ پھر ہم وہاں سے آگے چلے اور ہمارا گزر پانی پہ سے ہوا۔ وہاں ایک عورت تھی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جسے جن چمڑے ہوئے تھے۔ وہ اسے لے کر آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کی ناک کا نتنا پکڑ کے فرمایا، نکل جاؤ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھے۔ جب ہم واپس سفر سے لوٹے تو ہم دوبارہ اسی پانی کے پاس سے گزرے۔ بس وہی عورت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھنا ہوا گوشت اور دودھ لے کے حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنا ہوا گوشت واپس کر دیا اور اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا تو انہوں نے دودھ میں سے کچھ پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچے کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اس کے بعد ہم نے اس میں کبھی اس بیماری کا شائبہ تک نہ پایا۔ حضرت یعلا بن سیابہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قضائے حاجت کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کے 2 درختوں کو حکم دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک دوسرے سے مل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے قضائے حاجت فرمائی۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دوبارہ حکم دیا تو وہ اپنی جگہ پہ واپس آ گئے۔ پھر ایک اونٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنی گردن کو زمین پہ رگڑتا حاضر ہوا۔ وہ اتنا بلبلایا کہ اس کے ارد گرد کی جگہ گیلی ہو گئی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا خیال ہے کہ اس کا مالک اسے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مالک کی طرف سے آدمی بھیجا کہ اسے بلا لائے۔ جب وہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا یہ اونٹ مجھے ہدیہ کرتے ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اس سے بڑھ کر اپنے مال میں سے کوئی چیز محبوب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے اس کے معاملے میں بھلائی کی توقع رکھتا ہوں۔ اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنے تمام مال سے بڑھ کے اس کا خیال رکھوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر پس ایک گزر ہوا جس کے اندر موجود میت کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے گناہ کبیرہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی طلب فرمائی اور اسے اس قبر پہ رکھ دیا اور فرمایا، جب تک یہ ٹہنی خشک نہیں ہو جاتی اسے عذاب میں تخفیف دی جاتی رہے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے اونٹ سے کہا، اے اونٹ، تم اپنے رب کے ہاں میرے سلسلے میں مخامسہ نہ کرنا، میں نے تم پر تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لادا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی انصاری کے باغ میں داخل ہوئے۔ اچانک ایک اونٹ آیا اور آپ کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نبی کریم نے اس کی کمر پر اور سر کے پچھلے حصے پہ ہاتھ پھیرا جس سے وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو وہ دوڑتا ہوا آیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اس کو اللہ نے تمہاری ملکیت میں کر دیا ہے، اللہ سے ڈرتے نہیں؟ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے محنت و مشقت کا کام زیادہ لیتے ہو۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، ہم
हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर थे कि एक ऊंट भागता हुआ आया और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास खड़ा हुआ और सरे अनवर के पास आकर कान में कुछ कहने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ऊंट पुरसुकून हो, अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तुझे फायदा देगा और अगर झूठा तो तुझे इस झूठ की सजा मिलेगी। बेशक जो हमारी पनाह में आ जाता है अल्लाह ताला भी उसे अमान देता है और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। हमने अर्ज की, या रसूलल्लाह ये ऊंट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊंट के मालिकों ने इसे ज़िबाह करके इसके गोश्त खाने का इरादा किया था तो ये उनके पास से भाग आया है और इसने तुम्हारे नबी की बारगाह में इस्तिखाजा किया है। हम अभी बाहम इसी गुफ्तगू में मशगूल थे कि इस ऊंट के मालिक भागते हुए आए। जब ऊंट ने उनको आते देखा तो दोबारा नबी करीम अलैहिस्सलाम के सर के करीब हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। इन मालिकों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट हमारा 3 दिन से पास से भागा है और आज हमें आपकी खिदमत में मिला है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे सामने शिकायत कर रहा है और शिकायत बहुत ही बुरी है। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये क्या कह रहा है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कहता है कि तुम्हारे पास कई साल तक पला बढ़ा। जब मौसम गर्मा आता तो तुम घास और चारे वाले इलाकों की तरफ इस पे सवार होके जाते और जब मौसम सरमा आता तो इसी पे सवार होके गर्म इलाकों की जानिब कूच कर जाते। फिर जब इसकी उम्र ज्यादा हुई तो तुमने इसे अपनी ऊंटनियों में अफजाइश नस्ल के लिए छोड़ दिया। अल्लाह ने तुम्हें इससे कई सेहतमंद ऊंट अता किए। अब जबकि इस खस्ता हाली की उम्र को पहुंच गया तो तुमने इसे ज़िबाह करके इसका गोश्त खा लेने का मंसूबा बनाया। उन्होंने अर्ज की, खुदा की कसम या रसूल अल्लाह, ये बात मनवन इसी तरह है जैसे आपने बयान फरमाई। इस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक अच्छे खिदमत गुजार की इसके मालिकों की तरफ से क्या यही जजा होती है? वो अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, अब हम न इसे बेचेंगे और ना ही इसे ज़िबाह करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम झूठ कहते हो। इसने पहले तुमसे फरियाद की थी मगर तुमने इसकी दाद रसी न की और मैं तुम सबसे बढ़ के रहम फरमाने वाला हूँ। बेशक अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के दिलों से रहमत निकाल ली है और इसे मोमिनीन के दिलों में रख दिया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऊंट को इनमें से 100 दिरहम में खरीद लिया और फिर फरमाया, ए ऊंट, जा, तू अल्लाह की रिजा की खातिर आजाद है। इस ऊंट ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सर मुबारक पास जाकर कोई आवाज निकाली तो आका करीम ने फरमाया, आमीन। इसने फिर दुआ की। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, आमीन। इसने फिर दुआ की तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, आमीन। इसने जब चौथी मर्तबा दुआ की तो आका करीम आप दीदा हो गए। हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने पहली मर्तबा कहा, या रसूल अल्लाह, ए नबी मुकर्रम, अल्लाह ताला आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। मैंने कहा, आमीन। फिर इसने कहा, अल्लाह ताला क़यामत के रोज आपकी उम्मत से इसी तरह खौफ को दूर फरमाए जिस तरह आपने मुझसे खौफ को दूर फरमाया है। मैंने कहा, आमीन। फिर इसने दुआ की, अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह महफूज रखे जिस तरह आपने मेरा खून महफूज फरमाया है। इस पर भी मैंने आमीन कहा। फिर इसने कहा, अल्लाह ताला इनके दरमियान जंगो जदाल पैदा न होने दे। ये सुनकर मुझे रोना आ गया क्योंकि यही दुआएं मैंने भी अपने रब से मांगी थी। तो उसने पहली 3 तो कबूल फरमा ली लेकिन इस आखिरी दुआ से मना फरमा दिया। जिब्राइल ने मुझे अल्लाह ताला की तरफ से खबर दी है कि मेरी ये उम्मत आपस में तलवार जनी से फना होगी। जो कुछ होने वाला है कलम इसे लिख चुका है। हजरत अबू उमामा बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्तों मोजे पहनने के लिए मंगवाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोजा पहना था कि एक कव्वा आया और दूसरा मोजा उठा के ले गया और ऊपर जाके फेंक दिया। इस मोजे में से एक सांप निकला। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखता है तो वो अपने मोजे झाड़े बगैर न पहने। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जब क़ज़ाए हाजत का इरादा फरमाते तो आबादी से दूर तशरीफ ले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए। फिर वुज़ू फरमाया और अपने 2 मोज़ों में से एक मोज़ा पहना कि अचानक एक सब्ज परिंदा आया और आप अलैहिस्सलाम का दूसरा मोज़ा ले उड़ा। फिर उसे नीचे फेंका तो उसमें से एक सियाह सांप निकला। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मूज़ी जानवर से हिफाजत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चीज है जिसके जरिए अल्लाह ताला ने मेरी तकरीम फरमाई है। फिर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ हर उस मूज़ी जानवर से जो पेट के बल चलता है, हर उस जानवर के शर से जो 2 टांगों पे चलता है और उसके शर से जो 4 टांगों पे चलता है।
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ ہم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس میں چنڈول کے 2 بچے تھے۔ ہم نے وہ بچے اٹھا لیے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ چنڈول حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں شکایت کرتے ہوئے حاضر ہوئی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے اس چنڈول کو اس کے بچوں کی وجہ سے تکلیف دی؟ راوی بیان کرتے ہیں ہم نے عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بچے سے لوٹا دو۔ راوی بیان کرتے ہیں پس ہم نے وہ 2 بچے جہاں سے لیے وہیں رکھ دیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی محفل میں تشریف فرما تھے کہ بنو سلیم کا ایک اعرابی آیا۔ اس نے ایک گو کا شکار کیا اور اسے اپنی آستین میں چھپا کر اپنی قیام گاہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس نے جب صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھا تو اس نے کہا، یہ لوگ کس کے گرد جمع ہیں؟ لوگوں نے کہا، اس کے گرد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے محمد، کسی عورت کا بیٹا تم سے بڑھ کے جھوٹا اور مجھے ناپسند نہیں ہوگا۔ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے جلد باز کہے گی تو تمہیں قتل کرنے میں جلدی کرتا اور تمہارے قتل سے تمام لوگوں کو خوش کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ میں اس گستاخ کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے نہیں کہ حلیم و بردبار آدمی ہی نبوت کے لائق ہوتا ہے؟ وہ اعرابی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، مجھے لات و عزیٰ کی قسم میں تم پہ ایمان نہیں رکھتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے اعرابی، کس چیز نے تمہیں اس بات پہ ابھارا ہے کہ تم میری مجلس کی تکریم کو بالائے طاق رکھ کر ناحق گفتگو کرو؟ اس نے بے ادبی سے رسول اللہ سے کہا، کیا آپ بھی میرے ساتھ ایسے ہی گفتگو کریں گے؟ اور کہا، مجھے لات و عزیٰ کی قسم، میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گو آپ پہ ایمان نہیں لاتی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آستین سے گو نکال کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پھینک دی اور کہا، اگر یہ گو آپ پہ ایمان لائے تو میں بھی ایمان لاؤں گا۔ بس حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے گو، کلام کر۔ بس گو نے ایسی واضح اور فصیح عربی میں کلام کیا کہ جیسے تمام لوگوں نے سمجھا۔ اس گو نے عرض کی، اے 2 جہانوں کے رب کے رسول، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ اس نے عرض کی، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، زمین پر جس کی حکمرانی ہے اور سمندر پہ جس کا قبضہ، جنت میں جس کی رحمت ہے اور دوزخ میں جس کا عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اے گو، میں کون ہوں؟ اس نے عرض کی، آپ 2 جہانوں کے رب کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ فلاح پا گیا اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ اعرابی یہ دیکھ کے بول اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو روئے زمین پہ آپ سے بڑھ کر کوئی شخص مجھے ناپسند نہ تھا، اور بخدا اس وقت آپ مجھے اپنی جان اور اولاد سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ میرے جسم کا ہر بال اور ہر رونگٹا، میرا عیا و نہا اور میرا ظاہر و باطن آپ پر ایمان لا چکا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس اللہ جل تعالیٰ کے لیے ہی ہر تعریف ہے جس نے تجھے اس دین کی طرف ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہ ہوگا۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ صرف نماز کے ساتھ قبول کرتا ہے اور نماز قرآن پڑھنے سے ہی قبول ہوتی ہے۔ پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سکھائیں۔ وہ عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، میں نے بسیط اور رج عربی شاعری کے 16 اوزان میں سے 2 وزن میں سے اس سے حسین کلام کبھی نہ سنا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا، یہ رب 2 جہاں کا کلام ہے، شاعری نہیں۔ جب تم نے سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھ لیا تو گویا تم نے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب پا لیا، اور اگر اسے 2 مرتبہ پڑھا تو سمجھو کہ تم نے 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب پا لیا، اور تم نے اسے 3 مرتبہ پڑھا تو گویا تم نے پورے قرآن کا ثواب پا لیا۔ پھر اعرابی نے کہا کہ ہمارا معبود ہمارے تمام معبودوں سے بہتر ہے، جو تھوڑے عمل کو قبول فرماتا ہے اور بے حد حساب عطا فرماتا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، اس اعرابی کی کچھ مدد کرو۔ صحابہ کرام نے اسے اتنا دیا کہ اسے کثرت مال کی وجہ سے بے نیاز کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے ایک اونٹنی دے کر قرب الہی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فارسی نسل اونٹنی سے چھوٹی اور عربی نسل اونٹوں سے تھوڑی بڑی ہے، اور یہ 10 ماہ کی حاملہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم جو اونٹنی سے دو گے اس کی صفات تم نے بیان کر دی، اب میں تمہارے لیے اس اونٹنی کی صفات بیان کرتا ہوں جو اللہ نے تمہیں اس کی جزا میں عطا فرمائی۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
तुम्हें सुराखदार मोतियों की ऊँटनी मिलेगी जिसके पांव सब्ज ज़मरुद के होंगे और जिसकी गर्दन जर्द ज़बरजुद की होगी और इस पे कजावा होगा जो कि करीब और रेशम का बना होगा। वो पुल सिरात से तुम्हें बिजली के कूंदे की तरह गुजार देगी। फिर वो आराबी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह से बाहर निकला। रास्ते में उसे 1000 आराबी मिले जो 1000 सवारियों पर सवार थे और 1000 तीरों और 1000 तलवारों से मुसल्ला थे। इसने इनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हम इससे लड़ने जा रहे हैं जो कज़ब बयानी से काम लेता है और ये दावा करता है कि वो नबी है। इस आराबी ने उनसे कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इन्होंने कहा तुमने भी नया दीन इख्तियार कर लिया? उसने कहा मैंने नया दीन इख्तियार नहीं किया बल्कि दीन हक इख्तियार किया है। फिर इसने इन्हें गो से मुतालिक तमाम बात सुनाई। ये सुनकर हर कोई कहने लगा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम तक जब ये खबर पहुंची तो आप उन्हें मिलने के लिए तेजी से बगैर चादर के लिए बाहर तशरीफ लाए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपनी सवारियों से कूद पड़े और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के जिस हिस्से तक उनकी रसाई हुई उसे चूमने लगे और साथ कहने लगे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। फिर उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप हमें इस चीज का हुक्म दें जो आपको पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम खालिद बिन वलीद के झंडे तले होगे। रावी बयान करते हैं कि सारे अरब में सिर्फ बनु सलीम के ही 1000 लोग बैक वक्त ईमान लाए। हज़रत मिक़दाद बिन मअद करब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने चौपायों के चेहरे पे मारने से मना फरमाया। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बाज़ जानवरों की सिफ़ात हमीदा और उनके मायनवी और अखलाकी खूबियों के हामिल होने की वजह से इनके साथ एहसान और सलूक का हुक्म किया है। घोड़े के ताल्लुक से फरमाया घोड़े के साथ रोज़े क़यामत तक खैर वाबस्ता है और एक रिवायत में फरमाया ऊंट अपने मालिक के लिए इज्जत का बाइस है और बकरी में खैर बरकत है। एक और हदीस में रसूल अल्लाह ने फरमाया मुर्ख को गाली न दो चूंकि वो नमाज के लिए जगाता है। आपने जानवरों के साथ एहसान का हुक्म दिया और इसको अजर सवाब का बाइस बताया। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी रास्ते में चला जा रहा था। इसी असना में उसे सख्त प्यास लगी। चलते चलते उसको एक कुआं मिला। वो उसके अंदर उतरा और पानी पी के बाहर निकला तो क्या देखता है कि एक कुत्ता है जिसकी जुबान बाहर निकली है और प्यास की शिद्दत से वो कीचड़ खा रहा है। इस आदमी ने दिल में कहा कि उस कुत्ते को भी प्यास की ऐसी ही तकलीफ है जैसे कि मुझे थी और वो उस कुत्ते पे रहम खाकर फिर कुएं में उतरा और अपने चमड़े के मोजे में पानी भरकर इसको अपने मुंह से पकड़ा और कुएं से बाहर निकलकर उस कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह ताला ने इसकी रहम दिली को कबूल फरमाया, उसको बदला दिया और इसी अमल पे उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह क्या जानवरों की तकलीफ दूर करने में भी हमारे लिए अजर सवाब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, हर जिंदा और तर जिगर रखने वाले जानवर की तकलीफ दूर करने में सवाब है। एक दूसरी हदीस में है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया एक जानिया औरत ने सख्त गर्मी के दिन एक कुत्ते को देखा जो एक कुएं के गिर्द चक्कर लगा रहा था और प्यास की शिद्दत की वजह से अपनी जुबान निकाले हुए था, तो उसने अपने चमड़े के खफ से कुएं से पानी निकाला और कुत्ते को पिलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इस अमल की वजह से उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। आदमी जो खेती करता है या बाग लगाता है और उसकी खेती और दरख्त से कोई जानवर या परिंदा कुछ खा लेता है या चुग लेता है तो इसमें भी मालिक को सवाब मिलता है। हज़रत सहल इब्ने हंज़ला कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंट के करीब से गुजरे तो देखा कि भूख और प्यास की शिद्दत और सवारी और बार बर्दारी की ज्यादती से उसकी पीठ पेट से लग गई थी। आपने फरमाया कि इन बेज़ुबान चौपायों के बारे में अल्लाह ताला से डरो और इन पर ऐसी हालत में सवारी करो जबकि वो कवी और सवारी के काबिल हों और उनको इस अच्छी हालत में छोड़ दो कि वो थके ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत नकल की है। फरमाया कि एक आदमी बैल पर बोझ डाले हुए उसे हाँक रहा था। इस बैल ने उस आदमी की तरफ देखकर कहा कि मैं इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया हूँ बल्कि मुझे तो खेती बाड़ी के लिए पैदा किया गया है। लोगों ने हैरानगी और घबराहट में सुभान अल्लाह कहा और कहा क्या बैल भी बोलता है? तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तो इस बात पर यकीन करता हूँ और हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी करते हैं। इस हदीस से पता चला कि जानवर पर इसकी ताकत से ज्यादा और मकसद खलकत के अलावा दूसरे कामों के लिए इसका इस्तेमाल न किया जाए। दोस्तों खुलासा कलाम ये है कि इन आयात व हदीस की रोशनी में जानवरों की अहमियत व खुसूसियत और उनके मुनाफे का पता चलता है और जानवरों के ताल्लुक से आपके उसवा और नमूना का भी पता चलता है कि आपने कदम ब कदम जानवरों के साथ रहम करम का हुक्म दिया है। न सिर्फ घरेलू और पालतू जानवरों बल्कि गैर पालतू जानवरों के साथ भी
उसने सलूक की ताकीद की है। नुकसान दे और जरर रसा जानवरों को भी कम मार में मारने का हुक्म दिया और मस्बह जानवरों के साथ भी बेरहमाना सलूक से मना किया है और जानवरों पर बोझ के लादने और सवारी में भी उनकी चारा पानी की ताकीद की है और ज्यादा बोझ लादने और ज्यादा अफराद के सवार होने से मना किया है। आपने मूजी और तकलीफ दे जानवरों को मारने का हुक्म जरूर दिया है, मसलन सांप, बिच्छू वगैरह, लेकिन इनके मारने में भी एहसान और भलाई का हुक्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अल्लाह ने हर चीज में एहसान करना फर्ज किया है, इसीलिए जब तुम लोग किसी जानवर को मारो तो अच्छे तरीके से मारो और जब ज़िबाह करो तो अच्छे तरीके से ज़िबाह करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के लिए ये बात मुनासिब नहीं कि वो आग से तकलीफ पहुंचाए सिवाय आग के पैदा करने वाले को। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने का हुक्म फरमाया, लेकिन इसके मारने में भी नरमी और एहसान का हुक्म फरमाया है। इसको एक ही बार में मारे, इसको मुतादिद मार में मारने पर कम अजर हासिल होने की बात इरशाद फरमाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसने छिपकली को पहली ज़रब में मार डाला तो उसके लिए इतनी नेकियां हैं और जिसने उसे दूसरी ज़रब से मारा उसके लिए इतनी नेकियां हैं, मगर पहली दफा मारने वाले से कम, और अगर उसने तीसरी ज़रब से मारा तो उसके लिए इतनी नेकियां हैं, लेकिन दूसरी ज़रब से मारने वाले से कम। मुस्लिम की रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गिरगिट को एक ही वार में मार डाले उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी, दूसरे वार में इससे कम और तीसरे वार में इससे भी कम नेकियां लिखी जाएंगी। जानवरों की सवारी करने में भी हुस्न सलूक का ख्याल रहे। जानवर सवारी के लिए जरूर हैं, ये हमलो नकल का जरिया भी हैं। इसी को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, लितरकबूहा वज़ीना, तवील सफर में इसके लिए आराम लेने और चरने चुगने का मौका फराहम करने को कहा है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम सब्जे वाली जमीन में सफर करो तो ऊंटों को उनका हिस्सा दो, यानी असनाए राह। अगर हरियाली नजर आए तो उनको कुछ चरने और आराम लेने का मौका दो। भूखा प्यासा मुसलसल चलाकर उनको न थकाओ। एक जानवर पर 3 आदमियों को सवार होने से आपने मना फरमाया। इब्ने अबी शीबा रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में है कि इन्होंने 3 लोगों को खच्चर पे सवार देखा तो फरमाया, तुम में से एक शख्स उतर जाए, क्योंकि रसूल अल्लाह ने तीसरे शख्स पे लानत फरमाई है। ये उस सूरत में है जबकि वो जानवर 3 आदमियों के बोझ को उठाने की सलाहियत न रखता हो। अगर इस्तिताअत रखता हो तो जायज है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर पर इस तरह खड़े होने से मना फरमाया है कि जिससे उसको तकलीफ हो। सुनन नबी दाऊद में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आपने फरमाया, जानवरों की पुश्त को मिंबर ना बनाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने जानवरों को महज इसलिए तुम्हारे ताबे किया है कि वो तुम्हें इन शहरों और इलाकों में पहुंचा दें जहां तुम पैदल चलने के जरिए जानी मुशक्कत और मेहनत के साथ ही पहुंच सकते थे। यानी जानवरों से मकसूद उन पे सवारी करना और उनके जरिए अपने मकसद को हासिल करना है, लिहाजा उनको ईजा पहुंचाना रवा नहीं है। जिस जानवर की खलकत सवारी के लिए नहीं हुई, जैसे गाय वगैरह, तो उनकी सवारी करना जायज नहीं। जानवरों पर ताकत से ज्यादा बोझ न लादे। जानवर पर उसकी ताकत और कुव्वत से ज्यादा बोझ लादना जायज नहीं। इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को इस बात का इल्म था कि जिस बारे में रसूल अल्लाह ने सख्ती से मना फरमाया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जानवर पर उसकी ताकत और कुव्वत से ज्यादा बोझ लादेगा तो उसको रोज़े क़यामत हिसाब देना होगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक अंसारी घराने में एक ऊंट था जिसपे वो खेती बाड़ी के लिए पानी भरा करते थे। वो इनके काबू में न रहा और इन्हें अपनी पुश्त इस्तेमाल करने यानी पानी लाने से रोक दिया। अंसार सहाबा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारा ऊंट था, हम उससे खेती बाड़ी के लिए पानी का काम लेते। वो हमारे काबू में नहीं रहा और अब वो खुद से कोई काम नहीं लेने देता। हमारे खेत खलियान और बाग पानी की किल्लत के बाइस सूख गए हैं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम से फरमाया, उठो। बस सारे उठ खड़े हुए और उस अंसारी के घर तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहाते में दाखिल हुए तो ऊंट जो के कोने में था, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस ऊंट की तरफ चल पड़े। अंसार कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट कुत्ते की तरह पागल हो चुका है और हमें इसकी तरफ से आप पे हमले का खतरा है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ऊंट ने जैसे ही हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो आपकी तरफ बढ़ा, यहाँ तक करीब आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सजदे में गिर पड़ा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे पेशानी से पकड़ा और हस्बे साबिक दोबारा काम पे लगा दिया। सहाबा कराम ने ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तो बेअक्ल जानवर होते हुए भी आपको सजदा कर रहा है और हम तो अक्लमंद हैं, लिहाजा इससे ज्यादा हकदार हैं कि आपको सजदा करें।
एक और रिवायत में है कि सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम जानवरों से ज्यादा आपको सजदा करने के हकदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी फर्ज बशर के लिए जायज नहीं कि वो किसी बशर को सजदा करे, और अगर किसी बशर का बशर को सजदा करना जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को इसकी कद्र मंजिलत की वजह से सजदा करे जो कि इसे बीवी पे हासिल है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम महाजरीन व अंसार की एक जमात में तशरीफ फरमा थे कि एक ऊंट आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सजदा रेज हो गया। सहाबे कराम ने आपसे अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपको जानवरों दरख्त सजदा करते हैं जबकि हम आपको सजदा करने के ज्यादा हकदार हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने रब की इबादत करो और अपने भाई की इज्जत करो। अगर मैं किसी फर्द बशर को हुक्म देता कि वो किसी और को सजदा करे तो मैं जरूर औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, और अगर शौहर उसे हुक्म दे कि वो जर्द पहाड़ को स्याह पहाड़ और स्याह पहाड़ को सफेद पहाड़ तक ले जाए तो उस पर लाजिम है कि वो ऐसा करे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि एक अंसारी शख्स के पास 2 ऊंट थे, वो दोनों सरकश हो गए। इसने इन दोनों को बाग के अंदर कैद कर दिया और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए दुआ फरमाए। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम अंसार के एक गिरोह में तशरीफ फरमा थे, इसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास एक हाजत लेके हाजिर हुआ हूँ। मेरे 2 ऊंट हैं जो सरकश हो गए, मैंने उन्हें बाग में दाखिल करके दरवाजा बंद कर दिया। आपसे दरखास्त है कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें मेरा फरमाबरदार बना दे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से फरमाया, उठो मेरे साथ आओ। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले यहाँ तक कि इस बाग के दरवाजे पे तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजा खोलो। उस शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खदशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जानवर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पे हमला कर दें। आका करीम ने फरमाया, दरवाजा खोलो। इसने दरवाजा खोल दिया। दोनों ऊंटों में से एक दरवाजे के करीब ही खड़ा था। जब उसने नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखा तो फौरन आपको सजदा किया। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास कोई चीज लाओ जिसके साथ बांध कर मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूं। वो सहाबी एक नकील ले आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बांध दिया और सहाबी के हवाले कर दिया। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम बाग के दूसरे हिस्से की तरफ चले जहां दूसरा ऊंट था। इसने भी जब आका करीम अलैहिस्सलाम को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सजदा रेज हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा, मुझे कोई चीज लाओ जिससे मैं इसका सर बांधूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सर बांध कर इसे सहाबी के हवाले किया और फरमाया, जाओ, अब ये तुम्हारी नाफरमानी नहीं करेंगे। जब सहाबा कराम ने इस सारा वाकया देखा तो अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट जो बेअक्ल है आपको सजदा करता है तो क्या हम भी आपको सजदा न करें? इस बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं किसी इंसान को यह हुक्म नहीं देता कि वो किसी दूसरे इंसान को सजदा करे। अगर मैं किसी इंसान को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं जरूर औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम हजरत साइद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक सफर में हम हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ थे। हमने एक जगह पे पड़ाव किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साद, उस बकरी की तरफ जाओ और इसका दूध धो के लाओ। मैं उस मकान से वाकिफ था और उसमें कोई बकरी न थी। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुक्म पे मैं इस मकान की तरफ आया और अचानक देखा कि इसमें एक दूध से भरे हुए थनों वाली बकरी है। मैंने इसका दूध धोआ और मैं नहीं जानता कि कितनी बार धोआ। मैंने इससे बकरी की जिम्मेदारी एक शख्स को सौंपी और खुद सफर में मशगूल हो गया। वो बकरी वहां से चली गई। मुझे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने में ताखीर हुई। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए साद, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, बेशक सफर ने हमें मशगूल किया और बकरी चली गई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक बकरी को उसका मालिक ले गया। हजरत खुबाब रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी रिवायत करती हैं कि मेरे वालिद हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक में किसी गज़वा में शिरकत की गर्ज से घर से बाहर तशरीफ ले गए। वालिद की गैर मौजूदगी में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम हमारी देखभाल फरमाते और हमारी बकरी का दूध भी धोते। आप अलैहिस्सलाम इसका दूध हमारे प्याले में धोते यहाँ तक कि वो भर जाता। जब हजरत खुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस घर तशरीफ लाए और बकरी का दूध धोआ तो उसके थनों में दोबारा दूध लौट आया जैसे वो पहले था। हजरत जैश बिन खालिद सहाबी रसूल से मरवी है कि जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक के गुलाम आमिर बिन फहीर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके गाइड लैथी बिन अब्दुल्लाह बिन अरकीत मक्के से मदीना की तरफ हिजरत की गर्ज से निकले तो वो उम्मे माबुद ख़ज़ाइया के 2 खैमों के पास से गुजरे और वो बड़ी बहादुर और दलेर खातून थी। वो अपने खैमों के आगे मैदान में चादर ओढ़ के बैठती और लोगों को खिलाती पिलाती। इन हजरात ने इनसे खजूर या गोश्त दरियाफ्त किया कि खरीदें, मगर इनमें से कोई भी चीज इनके पास न पाई।
लोगों का ज़ादे राह खत्म हो चुका था और लोग कहत की हालत में थे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खैमे के एक कोने में एक भेड़ देखी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उम्मे माबद, ये भेड़ कैसी है? उन्होंने अर्ज की, ये वो है जिसको थकन ने बाकी भेड़ों से पीछे कर दिया, जिसकी वजह से और भेड़ें चरने गई और ये रह गया। फरमाया, इसका कुछ दूध भी है? उन्होंने अर्ज की, इसके लिए दूध देना यानी इससे जंगल में जाने से भी ज्यादा दुश्वार है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मुझे इजाजत देती हो कि मैं इसका दूध दूं? उन्होंने अर्ज की, मेरे बाप आप पे कुर्बान, हाँ अगर आप इसके दूध देखें तो धो लीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़ के थन पे हाथ फेरा और फरमाया कि ऐ अल्लाह, उम्मे माबूद को इन भेड़ों में बरकत दे। इस भेड़ ने टांगे फैला दी, कसरत से दूध दिया और फरमा बरदार हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने उनका वो बर्तन मांगा जो सारी कौम को सैराब करे। इसमें आका करीम अलैहिस्सलाम ने दूध को सैलाब की तरह धोआ, यहाँ तक कि कफ उसके ऊपर आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने इसे पिलाया, उम्मे माबूद ने पिया, यहाँ तक कि वो भी सैराब हुई और आप अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को भी पिलाया, वो भी सैराब हो गए। सबसे आखिर में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी नोश फरमाया और फरमाया कि कौम के साकी को सबसे आखिर में पीना चाहिए। सबने एक बार पीने के बाद दोबारा पिया और खूब सैर हो गए। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने इब्तिदाई बर्तन में इसी तरीके पर दोबारा दूध धोआ और इसको उम्मे माबूद के पास छोड़ दिया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम लोगों में सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा सखी और सबसे ज्यादा बहादुर थे। एक रात अहले मदीना एक दहशतनाक आवाज की वजह से खौफजदा हो गए। सहाबा कराम इस आवाज की तरफ गए। रास्ते में उन्हें हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम इस जगह से वापस आते हुए मिले। आप हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के घोड़े की नंगी पीठ पे सवार थे। आपकी गर्दन मुबारक में तलवार लटक रही थी और फरमा रहे थे, तुमको खौफजदा नहीं किया गया, तुमको खौफजदा नहीं किया गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमने इस घोड़े को समंदर की तरह रवा दवा पाया, या वो समंदर था। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि वो घोड़ा बहुत आहिस्ता चलता था, मगर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस पर सवार होने की वजह की बरकत से ये निहायत तेज रफ्तार हुआ। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दफा एक भेड़िया बकरियों पे हमला आवर हुआ और इनमें से एक बकरी को उठा लिया। चरवाहे ने इसका पीछा किया और इससे बकरी छीन ली। भेड़िया पिछली टांगों को जमीन पर फैलाकर सुरीन पे बैठ गया और अगली टांगों को खड़ा कर लिया। इसने चरवाहे से कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते कि मुझसे अल्लाह ताला का अता करदा रिज्क छीन रहे हो? चरवाहे ने हैरान होकर कहा, बड़ी हैरान कुन बात है कि भेड़िया अपनी दुम पर बैठा मुझसे इंसानों जैसी बातें कर रहा है। भेड़िए ने कहा, क्या मैं तुम्हें इससे भी अजीब तर बात न बताऊं? नबी करीम अलैहिस्सलाम जो कि यसरब में तशरीफ फरमा है, लोगों को गुजरे हुए जमाने की खबरें देते हैं। रावी बयान करते हैं कि वो चरवाहा फौरन अपनी बकरियों को हाँकता मदीने मुनव्वरा में दाखिल हुआ और उनको अपने ठिकानों में से किसी ठिकाने पे छोड़कर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मामले की खबर दी। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर बाजमात नमाज के लिए अजान कही गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और चरवाहे से फरमाया, सब लोगों को इस वाक़े की खबर दो। बस उसने वो वाक़या सबको सुनाया। इसके बाद हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसने सच कहा, मुझे कसम है इस जात की कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक कि दरिंदे इंसान से कलाम न करे और इंसान से उसकी चाबुक की रस्सी और जूते के तस्मे कलाम न करें। इसकी रान उसे खबर देगी कि इसके बाद उसके घर वाले क्या करते रहे हैं। हजरत सईदना ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक आगराबी के खैमे के पास से गुजरा तो वहां एक हिरनी बंधी हुई थी। बेकसों के फरियाद रिसा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे नजर पड़ते ही हिरनी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये खैमे वाला आराबी देहाती मुझे जंगल से पकड़ के लाया है, जबकि मेरे 2 बच्चे जंगल में हैं। मेरे थनों में दूध गाढ़ा हो रहा है। ये ना तो मुझे ज़िबा करता है कि मैं इस तकलीफ से राहत पा जाऊं और ना मुझे छोड़ता है कि अपने बच्चों को दूध पिला आऊं। हिरनी की फरियाद सुनकर मजलूमों की फरियाद रिसा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो क्या तू अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाएगी? अर्ज किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मैं जरूर वापस आऊंगी। अगर मैं ना आऊं तो अल्लाह मुझे जहन्नम में डाल दे और मुझे अजाब दे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसे छोड़ा तो वो बड़ी तेजी और बेकरारी से जंगल की तरफ चली गई और थोड़ी देर बाद वापस आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खैमे के साथ बांध दिया। इतने में वो आराबी भी पानी का मुश्कीजा उठाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। आका करीम ने फरमाया, ये हिरनी हमें बेच दो। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये बतौर हदिया पेश खिदमत है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आजाद फरमा दिया।
حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس ہرنی کو دیکھا کہ وہ جنگل میں کلمہ پڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ دوستو فرائض تو فرائض ہیں جن کو کسی صورت بھی چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن بعض ہم میں سے بہت لوگ نفلی عبادات بھی کرتے ہیں۔ دوستو اگر ایک بات پر ہم عمل پیرا ہو جائیں کہ ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے اور جھوٹ سے بچے رہنا ہے تو ہماری دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ دوستو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلامے کے موقع پر وہ ہرنی بھی جھوٹ بول سکتی تھی، لیکن وہ جانور ہو کے سچ بول گئی اور ہم انسان ہو کر بھی اپنے کئی معاملات میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدکار عورت کی بخشش صرف اس وجہ سے کی گئی کہ ایک مرتبہ اس کا گزر ایک ایسے کنویں پر ہوا جس کے قریب ایک کتا کھڑا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے ہلاک ہو جائے۔ کنویں سے پانی نکالنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ اس عورت نے اپنا چرمی موزہ نکال کر اپنی اوڑھنی سے باندھا اور پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ اس عورت کا یہ فعل بارگاہ الہی میں مقبول ہوا اور اس کی بخشش کر دی گئی۔ ایک شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے حوض میں پانی بھرتا ہوں اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے، کسی دوسرے کا اونٹ آ کر اس میں سے پانی پیتا ہے تو کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہر تر جگرنے والے جانوروں کے رکھنے میں اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی اور بدسلوکی کو عذاب و عقاب کی سزا کی وجہ گردانا اور انتہائی درجے کی معصیت اور گناہ قرار دیا اور انسانی ضمیر جھنجھوڑنے والے سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ چنانچہ حضرت امام بخاری نے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک عورت کو اس لیے عذاب دیا گیا کہ وہ بلی کو باندھ کے رکھتی تھی، نہ کھلاتی نہ پلاتی اور نہ اس کو چھوڑتی کہ چر چگ کھائے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس سے ایک گدھا گزرا جس کے منہ پہ داغا گیا تھا۔ آپ نے اس کو دیکھ کے فرمایا اس شخص پہ لعنت ہو جس نے اس کو داغا ہے، اور ایک روایت میں ہے رسول اللہ نے چہرے پہ مارنے اور داغنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ غیلان بن جنادہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم کے پاس اونٹ پر آیا جس کی ناک کو میں نے داغ دیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا اے جنادہ، کہ تمہیں داغنے کے لیے صرف چہرے کا عضو ہی ملا تھا، تم سے تو قصاص ہی لیا جائے۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ گھریلو جانوروں کے ساتھ بدسلوکی اور بیجا مار پیٹ کی ممانعت کی، بلکہ غیر پالتو جانوروں کو بھی بیجا پریشان کرنے اور ان سے چھیڑخانی کو منع فرمایا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک مرتبہ ہم لوگ رسول کریم کے ہمراہ سفر میں تھے، جب ایک موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا کو دیکھا جس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ ہم نے ان دونوں بچوں کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد چڑیا آئی اور اپنے بچوں کی گرفتاری پہ احتجاج کرنے لگی۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے ہمراہ کو اس طرح بےتاب دیکھا تو فرمایا کہ کس نے اس کے بچوں کو پکڑ کر اس کو مضطرب کر رکھا ہے؟ اس کے بچے اس کو واپس کرو۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ان کا گزر قریش کے چند نوجوانوں کے پاس سے ہوا جو کسی پرندے یا مرغی کو نشانہ بنا رہے تھے۔ حضرت ابن عمر نے ان کو دیکھا تو وہاں سے منتشر ہو گئے اور فرمایا کہ نبی کریم نے اس شخص پہ لعنت فرمائی ہے جو کسی جاندار چیز کو باندھ کر اس پہ نشانہ لگائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمی و کریمی صرف انسانوں تک مخصوص نہ تھی، ان کی شان رحمت کی وسعت نے جانوروں کے حقوق کے لیے بھی بلکہ جد و جہد کی اور ان کو اپنے رحم و کرم کے سائے سے حصہ وافر عطا کیا۔ آپ کے برتاؤ اور ان کی حقوق کی ادائیگی کی تاکید جانوروں کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہترین سلوک کی دعوت کی روشنی میں جانوروں کے ساتھ برتاؤ کا بھی جائزہ لیں کہ کیا ہمارے جانوروں کے ساتھ وہی برتاؤ ہے جس کی تاکید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، یا ہم جانوروں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام لے کر عذاب اور وعیدوں کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے لوگ بڑے جاہل تھے، وہ بہت سے ایسے کام کرتے جو کھلم کھلا ظلم تھا، جانوروں پر بھی وہ طرح طرح کے مظالم کرتے۔ انہی مظالم میں سے ایک یہ تھا کہ جب وہ سفر کرتے، راستے میں کھانے کا سامان ختم ہو جاتا تو زندہ جانور کے جسم سے گوشت کاٹ کر کچا بھون کے کھا جاتے، اور اسی طرح اگر سفر کے دوران پانی نہ ملتا تو یہ لوگ اونٹ کا کوہان چیر کر اس میں سے پانی نکال کے پی جاتے، اور بھی اسی طرح کے کئی ظلم جانوروں پہ کرتے۔ لیکن جب رحمت کائنات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے معاملے میں لوگوں کو سمجھایا، انہیں ہدایات دی اور ان بے زبانوں پر ظلم کا سلسلہ بند کروایا۔ اسی طرح آپ کی ذات گرامی جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئی، اس لیے جانوروں پہ ترس کھانا، ان کی خوراک کا خیال رکھنا، خصوصاً بھوک میں ان کو کھانا پلانا، ان کو تنگ کرنے سے باز رہنا، ان کی طاقت کے مطابق ان پہ بوجھ لادنا، زخمی یا بیمار ہونے کی صورت میں انہیں آرام دلانا ایک مسلمان پہ فرض ہے۔
दोस्तों, नबी करीम अलैहिस्सलाम जानवरों पर भी बहुत मेहरबान थे और आपको इस मखलूक से बहुत उनसियत थी। आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक माशरती बीमारी झूठ के बारे में बताते हैं कि आया झूठ है क्या और इसका आगाज कब से हुआ, फिर झूठ के नुकसानात क्या हैं और हमारी जिंदगी में झूठ कितना रस बच चुका है। इस सब के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, झूठ या कज़ब अरबी या दरोग फारसी किसी शख्स या गिरोह का किसी दूसरे शख्स या गिरोह के मुतालिक कसदन किसी बात को हकीकतन के खिलाफ बयान करता है। झूठ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कोई फायदा पाने या नुकसान से बचने के लिए बोला जाता है। माशरे में इसको आमतौर पर एक बुरा फेल गर्दाना जाता है और बचने की तलकीन की जाती है। हुकूमतें इस बारे में कई किस्म के कवानीन बनाती हैं और बाज़ सूरतों में इस पर सजा मुकर्रर है। मज़ाहिब में भी इसकी सख्त मुजम्मत की जाती और मरने के बाद सजा से खौफ दिलाया जाता है। दुनिया में झूठ का आगाज कब हुआ और कौन सा पहला इंसान था जिसने झूठ बोला, इस सिलसिले में तारीख बिल्कुल खामोश है। बाज़ लोगों का नुक्ता नजर है कि जब शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को बहकाया कि तुम फलां दरख्त का फल खा लोगे तो तुम्हारी आंखें रोशन हो जाएंगी तो और तुम सब चीजों को देख सकोगे, तो शैतान का बस हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर तो न चला, लेकिन उसने अम्मा हव्वा के दिल में वसवसा डाला कि इस दरख्त जिसके करीब भी जाने से अल्लाह ने मना किया था कि फल खाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम दोनों की आंखें खुल जाएंगी और तुम दोनों सब कुछ देख सकोगे। शैतान की इस बात को सुनकर अम्मा हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि इस दरख्त के फल खाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारी आंखें खुल जाएंगी और हम सब कुछ देख सकेंगे। दरअसल अम्मा हव्वा ने अल्लाह के इस हुक्म को नजरअंदाज कर दिया कि दरख्त के करीब न जाना और उसका फल न खाना, वगरना गुमराह हो जाओगे। कुछ लोगों के ख्याल में अम्मा हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलत बयानी से काम लिया और उनके ख्याल में ये बात झूठ के जिम्रे में शुमार होती है, लेकिन कुछ लोगों की राय मुख्तलिफ है। उनकी राय के मुताबिक अम्मा हव्वा उस वक्त अल्लाह के हुक्म को भूल गईं और उन्होंने शैतान की बात को सच समझा और उसकी बात हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बयान की। उन अफराद की राय के मुताबिक ये झूठ नहीं था, ये तर्क उला था, यानी गलती थी, और ये तर्क उला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी सरजद हुआ, जिसकी उन्होंने अल्लाह ताला से माफी मांगी और अल्लाह ने उन्हें माफ फरमा दिया। अल्लाह की आखिरी किताब हिदायत कुरान के मुताबिक शैतान ने दोनों को बराह रास्त बहकाया, न कि अम्मा हव्वा को और उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को। दोनों नुक्ता नजर क़ारीन के सामने है, वो खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन सा नुक्ता नजर सही है और कौन सा गलत। ताहम पहला झूठ कब बोला गया, तारीख इस सिलसिले में बिल्कुल खामोश। दोस्तों, लोग झूठ क्यों बोलते हैं, इसकी कुछ वजूहात है। मसलन झूठ बाज़ औक़ात लोग अपने किसी गलत काम को छुपाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर उनका गलत काम जाहिर हो गया और गलत काम की सच्चाई सामने आ गई तो उस सूरत में लोगों में उनकी इज्जत नहीं रहेगी। बाज़ औक़ात लोग अपनी शान और शौकत कायम रखने के लिए भी झूठ बोलते हैं, और मिसाल के तौर पे उनके पास दौलत नहीं होती, गाड़ी नहीं होती, बंगला नहीं होता और बैंक बैलेंस नहीं होता, लेकिन लोग अपने दोस्तों यारों और अपनी गर्लफ्रेंड को मुतासिर करने के लिए झूठ बोलते हैं कि उनके पास दौलत, गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस सब कुछ मौजूद है। बाज़ औक़ात लोग अपनी आदत के हाथों मजबूर होते हैं और झूठ बोलते हैं। इस किस्म के झूठ की लोगों को आदत पड़ जाती है और बेख्तियार इस किस्म का झूठ बोला बता जाता है। ऐसे लोग अपनी आदत से मजबूर होकर झूठ बोलते हैं। इस किस्म का झूठ अक्सर टीवी टॉक शोज में बोला जाता है, जैसे कि सियासी जलसों में हाज़रीन की तादाद को कम या ज्यादा करके बताया जाता है। इसका सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि सब समझ रहे होते हैं कि झूठ बोला जा रहा है, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं होती कि कोई खुले अल्फाज में कहे कि अल्लाह के बंदो झूठ ना बोलो। झूठ की और भी बेशुमार किस्में हैं, जितना सोचते जाएं उतना ही झूठ मिलता जाएगा। अल्लाह ताला ने झूठ को कबीरा गुनाह करार दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स आपके पास आया और कहने लगा कि मैं इस्लाम लाना चाहता हूं, लेकिन मुझमें बहुत सी बुराइयां हैं जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। आप फरमाइए कि मैं कोई एक बुराई छोड़ दूं तो वह मैं छोड़ दूंगा। आपने उस शख्स से फरमाया कि झूठ बोलना छोड़ दो। उस शख्स ने वादा किया और झूठ बोलना छोड़ दिया, तो इसके झूठ बोलने के छोड़ने के सबब इसकी तमाम बुराइयां छूट गईं। इससे ये सबक मिलता है कि झूठ बोलना कितनी बड़ी बुराई है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि बनी सलमा के किसी शख्स का ऊंट मस्ती में आ गया। वो लोगों पे हमला आवर होने लगा, उनके काम से रुक गया, यहाँ तक कि खजूर के दरख्त पानी न मिलने की वजह से खुश्क हो गए। इस शख्स ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर इस अम्र की शिकायत की। आका करीम ने फरमाया चलो चलें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इसके साथ तशरीफ ले गए। जब बाब नख्ल तक पहुंच गए तो उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अंदर दाखिल न हो क्योंकि मुझे इससे आपके हवाले से खतरा है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दाखिल हो जाओ और फिक्र न करो। जब ऊंट की नजर आप पे पड़ी तो सर झुकाते हुए चलकर आका करीम के सामने आ खड़ा हुआ, फिर सजदा किया। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने ऊंट के पास आओ, इसे नकेल डालो और इस पे कुजावा रखो। चुनांचे लोगों ने आकर
जिस पर नकेल डाली और कजावा रखा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। अपनी राय का इजहार कमेंट में बिल्कुल लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व फी अमानिल्लाह।